السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان ٹیلی ویژن نیوز خبر نامے کے ساتھ میں ہوں رضوان علی احمد۔ میں ہوں نازیہ خان۔ کھیلوں کی خبروں میں ہوں آپ کے ساتھ محمد انیس، اور ویدر اپڈیٹ لیے میں آپ کے ساتھ عبد القدیر۔ سب سے پہلے ایک نظر ہیڈ لائنز پر۔ دنیا کے مسائل کا حل، عالمی سربراہان حکومت ایک چھت تلے جمع۔ نیو یارک میں اقوام متحدہ جنرل اسمبلی اجلاس کا آغاز، وزیر اعظم محمد شہباز شریف کی وفد کے ہمراہ شرکت۔ وزیر اعظم سیکرٹری جنرل اقوام متحدہ کے استقبالیے میں شرکت کریں گے۔ مالدیپ کے صدر محمد معیزو کے ساتھ وزیر اعظم کی ملاقات بھی آج ہوگی۔ فلسطین اور جموں کشمیر کے درینہ تنازعات، وزیر اعظم کے جنرل اسمبلی سے خطاب کا محور، دیگر عالمی مسائل کے حل پر بھی زور دیں گے۔ وزیر اعظم فلسطین کے صدر محمود عباس سے خصوصی ملاقات کریں گے۔ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل بل گیٹس، عالمی بینک کے صدر اور عالمی مالیاتی فنڈ کی مینیجنگ ڈائریکٹر سے بھی ملاقاتیں ہوں گی۔ امریکہ میں پاکستان بزنس کونسل اور پاکستانی بینکرز بھی وزیر اعظم سے ملاقات کریں گے۔ شہباز شریف کاروبار دوست پالیسیز کو اجاگر کریں گے۔ سلطان برنائے دارالسلام کے زہرانے اور بنگلہ دیش کے چیف ایڈوائزر ڈاکٹر محمد یونس کے عشائیے میں بھی شرکت کریں گے۔ عدم مساوات دنیا میں تباہی کی بڑی وجہ، ایک اور بڑے تصادم کا اندیشہ۔ مشرق وسطی میں غزہ کے بعد لبنان کو بھی خطرناک صورتحال کا سامنا۔ کشیدگی کے خاتمے اور چیلنجز سے نمٹنے کے لیے فوری اقدامات ضروری ہیں۔ آئندہ نسلوں کے لیے دنیا کو محفوظ بنانا ہوگا۔ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل انتونیو گوتریس اور صدر جنرل اسمبلی فلیمون ینگ کا افتتاحی سیشن سے خطاب۔ دو ریاستی حل سے ہی مسئلہ فلسطین ختم ہو سکتا ہے۔ غزہ میں فوری جنگ بندی ناگزیر ہے۔ لبنان کی صورتحال کا سفارتی حل نکالنا ہوگا۔ مشرق وسطی میں ایک اور جنگ کسی کے مفاد میں نہیں، مشکلات ہیں اور ان سے نکلنے کا راستہ بھی ہے۔ امریکی صدر جو بائیڈن کا جنرل اسمبلی سے خطاب۔ اقوام متحدہ کے امن کے بنیادی ہدف کے حصول میں کامیاب نہ ہو سکے۔ عالمی امن سلامتی کونسل کے 5 مستقل ارکان کے ہاتھوں یرغمال ہے۔ غزہ میں 41,000 سے زیادہ افراد شہید ہو گئے۔ صہیونی جارحیت نے تمام حدیں عبور کر لی لیکن کوئی نہ روک سکا۔ اسرائیلی بربریت کا زیادہ تر شکار خواتین اور بچے بنے۔ ترکیہ کے صدر رجب طیب اردوان کا UN جنرل اسمبلی میں اظہار خیال۔ سیکیورٹی مسائل مستقبل کے لیے سب سے بڑا خطرہ۔ غزہ جیسے سانحات حل کیے بغیر پائیدار ترقی ممکن نہیں۔ مساوی مستقبل کے لیے ڈیجیٹل تقسیم ختم کرنا ہوگی۔ قرض نظام کو منصفانہ بنانا ہوگا۔ وزیر دفاع خواجہ محمد آصف کا نیو یارک میں سمٹ آف دی فیوچر سے خطاب۔ مؤثر اقدامات کی بدولت عالمی برادری کے ساتھ پاکستان کے تعلقات میں نمایاں بہتری۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے ہر فورم پر فلسطین اور کشمیر کے تنازعات کو اجاگر کیا۔ پاکستان معاشی لحاظ سے ابھرتی ہوئی مارکیٹ بن چکا ہے۔ مہنگائی سنگل ڈیجٹ پر آ گئی۔ موڈیز اور فچ کی ریٹنگز اپ گریڈ ہوئیں۔ برآمدات میں 14% اضافہ ہوا۔ IT برآمدات 3.1 ارب ڈالرز پر پہنچ گئیں۔ تبدیلی کے دعوے دار بانی PTI نے الٹی گنگا بہائی۔ اپنے دور اقتدار میں پاکستان کو تنہائی کا شکار کیا۔ سی پیک بند ہوا۔ دوست ممالک ناراض کیے۔ وزیر اطلاعات عطا اللہ تارڑ کی سے نمٹنے کے لیے آپریشنل تیاریوں اور جوانوں کے بلند حوصلے کی تعریف۔ پاک فوج خیبر پختونخوا پولیس کی استعداد کار میں اضافے کے لیے تکنیکی معاونت کرتی رہے گی۔ دہشت گردی کے خاتمے کے لیے قبائلی مائدین کی حمایت پاک فوج کے لیے تقویت کا باعث ہے۔ آرمی چیف کا افسروں اور جوانوں سے خطاب۔ آئین پاکستان وفاق کی یکجہتی کا ضامن۔ بر وقت انصاف کی فراہمی کے لیے آئینی عدالت کا قیام ضروری ہے۔ آئینی عدالت میں تمام وفاقی اکائیوں کی نمائندگی ہوگی۔ عدالتی
जरदारी का सिंध हाई कोर्ट बार की तकरीब से खिताब। सपोर्ट प्रोग्राम में शमूलियत बढ़ाई जाए, सदर मुमलिकत की हिदायत। चेयरपर्सन BISP रुबीना खालिद की सदर आसिफ अली जरदारी को प्रोग्राम पर ब्रीफिंग। सदर मुमलिकत ने मुस्तहिकीन की मदद करने पर बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम है। पॉलिसी रेट पे कमी, ज़र मुबादला के ज़खायर में इजाफा और बराह रास्त गैर मुल्की सरमायाकारी सबूत है। हुकूमती इदारों और मुख्तलिफ शोबों में इस्लाहात जारी हैं। मैक्रो इकनॉमिक इस्तेहकाम हदफ है। वज़ीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब का CPEC सेमिनार से वीडियो लिंक खिताब। मस्बत मुआशी अशारिये, महंगाई की शरह में वाज़े कमी, दुरुस्त समत में सफर की निशानदेही है। तरक्की की इस राह पर गामजन रहना होगा। पाकिस्तान को वस्त एशिया समेत दीगर खित्तों से मिलाने के लिए मुख्तलिफ मंसूबों पर काम जारी है। पाकिस्तान बेलारूस का टेक्सटाइल शोबे में ताउन बढ़ाने पर इत्तेफाक। इस्लामाबाद में दोनों मुल्कों के मुश्तरका वजारती कमीशन का इजलास। मुफाहमती याददाश्त पर दस्तखत। गैर मुल्की सरमायाकारों को सहूलतें दी जा रही हैं। बेलारूस के साथ तिजारत, ज़राअत समेत दीगर शोबों में ताउन मजीद बढ़ाया जाएगा। इक्तिसादी खुशहाली के लिए इलाकाई राबता जरूरी। बेलारूस तवानाई के शोबे की तरक्की में पाकिस्तान की मुआवनत करेगा। वजीर तिजारत जाम कमाल खान और बेलारूस के वजीर तवानाई एलेक्सी कुशनेरेंको वजीर आला मरियम नवाज की सदारत में सूबाई काबीना के इजलास में वर्किंग विमेन हॉस्टल्स पर चार्जेस न बढ़ाने का फैसला। पेशावर में कम उम्र बच्चे गायब होने का इंकिशाफ। सूबाई असेंबली में तवज्जो दिलाओ नोटिस। अवाम में बेचैनी, संगीन नौयत के मामले पर ईवान में बात करने की इजाजत दी जाए। मुस्लिम लीग नून के रुकने असेंबली गजा के बाद लबनान भी इस्राएली बर्बरियत का शिकार। खवातीन और बच्चों समेत 558 शहीद, 1800 से जायद जख्मी। मुतासरा इलाके मलबे का ढेर बन गए। शहरी बड़ी तादाद में नकल मकानी पर मजबूर। कई एयरलाइंस की परवाजें बंद। गजा पर ताजा से होनी बर्बरियत में 12 फलस्तीनी शहीद। मकबूजा कश्मीर में नाम निहार इंतखाब से कबल सख्त पाबंदियां। फौज और पैरामिलिट्री फोर्सेज के इजाफी नफरी तैनात। गाड़ियों और मुसाफिरों की सख्त तलाशी। बुनियादी हुकूक सख्त। इलाके में खौफ और दहशत का माहौल। कश्मीरी अवाम की मुकम्मल लाताल्लुकी। नाम निहार इंतखाबात हक खुद इरादियत का मुतबादिल नहीं। हुर्रियत क़यादत ने ढोंग इंतखाबात को भारत की पाकिस्तान से हार। असजद इकबाल ने मलकीत सिंह को इबरतनाक शिकस्त दी। 6-0 फ्रेम से सेमीफाइनल यकतरफा रहा। पाकिस्तान मंगोलिया में जारी वर्ल्ड 6 रेड स्नूकर चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंच गया। की जनरल असेंबली के 79वें इजलास की, जिसका बाकायदा आगाज हो गया है और वजीर आजम मोहम्मद शहबाज शरीफ ने इफ्तिताही सेशन में शिरकत की। इफ्तिताही सेशन से खिताब करते हुए अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल अंतोनियो गुतेरेस ने कहा कि अदम मसावात की वजह से मसाइल बढ़ रहे हैं। गजा में मुसलसल खौफनाक सूरत हाल का सामना है। इफ्तिताही सेशन की तफसील बता रहे हैं आगा मसूद खालिद। अक़वाम मुत्तहिदा जनरल असेंबली के 79वें इजलास का आगाज हो गया है। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ जनरल असेंबली इजलास के इफ्तिताही सेशन में शरीक हुए। वज़ीर आज़म के हमरा आला सतह वफ्द में वज़ीर दिफा ख्वाजा मोहम्मद आसिफ,
वजीर इतलात अताउल्लाह तारड़, वजीर तालीम खालिद मकबूल सदीकी, मावन खसूसी तारिक फातमी और अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब मुनीर अकरम मौजूद थे। अक़वाम मुत्तहिदा जनरल असम्बली का आला सतह इजलास मुल्कों को इलाकाई और बैनुल अक़वामी अमूर पर अपना नुक्ता नजर पेश करने का बेहतरीन मौका फराहम करता है। इस साल इजलास का उन्वान कोई पीछे न रहे, आइंदा नस्लों के लिए अमन, इंसानी वक़ार और पायदार तरक्की के लिए मुश्तरका काविशें हैं। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ 27 सितंबर को जनरल असम्बली से कलीदी खिताब करेंगे। इफ्तिताही सेशन से खिताब करते हुए अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस ने सरबराहान हुकूमत का खैर मकदम करते हुए कहा कि आलमी सतह पर दरपेश चैलेंजेस में इजाफा हो रहा है, अदम मसावात की वजह से मसाइल बढ़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि गजा में मुसलसल खौफनाक सूरत हाल का सामना है। It is time for a just peace based on the UN Charter, on international law, and on UN resolutions. Meanwhile, Gaza is a non-stop nightmare that threatens to take the entire region with it. अमेरिका के सदर जो बाइडन ने अपने खिताब में कहा कि दुनिया को जो अहम चैलेंजेस दरपेश हैं, उनमें मौसमियाती तब्दीली और दहशत गर्दी से निमटने के लिए सबको अपना किरदार अदा करना है। उन्होंने कहा कि गजा में फौरी जंगबंदी वक्त की जरूरत है। मशरक़ वुस्ता में एक और जंग किसी के मुफाद में नहीं। As we look ahead, we must also address the rise of violence against innocent Palestinians on the West Bank and set the conditions for a better future, including a two-state solution where the world, where Israel enjoys security and peace and full recognition and normalized relations with all its neighbors, where Palestinians live in security, dignity and self-determination in a state of their own. सदर जनरल असम्बली फिलेमोन यंग ने इफ्तिताही सेशन से खिताब करते हुए कहा कि दुनिया में क़याम अमन के लिए मुश्तरका इक़दामात करने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि फलस्तीन के मसले के हल के लिए सबको मिलकर किरदार अदा करना होगा। आगा मसूद खालिद, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़। तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान ने गजा पर इस्राएली बर्बरियत रोकने पर अक़वाम मुत्तहिदा के किरदार पर शदीद तनकीद की है। जनरल असम्बली इजलास से खिताब करते हुए तुर्क सदर ने कहा कि अमन के लिए कायम होने वाला इदारा अपना हदफ हासिल करने में नाकाम हो चुका। सलामती काउंसिल बताए कि इस्राएली मजालिम रोकने के लिए जंगबंदी करारदाद पर अमल दरामद कराने में क्यों नाकाम है। तुर्क सदर ने कहा कि 41,000 से ज्यादा फलस्तीनी इस्राएली बमबारी में शहीद हो चुके। इंसानी हकूक की आलमी तंजीमें बताएं कि क्या फलस्तीनी बच्चों और औरतों के कोई हुकूक नहीं। Şu gerçeği görebiliyoruz. Since October 7, 41,000 Palestinians have been killed in the continuous Israeli attacks. 100,000 people were injured, maimed, or they lost their limbs. 172 journalists were killed, and more than 500 medics have been killed while they were trying to save lives. What kind of barbarianism we are facing? As a result of Israeli attacks, Gaza has become the world's largest cemetery for women and children. Unfortunately, the United Nations has failed to fulfill its founding mission. नाज़रीन, वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ आज न्यूयॉर्क में पायदार तरक्की के अहदाफ से मुतालिक आला सतह इजलास में शरीक होंगे। वज़ीर आज़म इजलास से खिताब भी करेंगे, जिसमें पायदार तरक्याती अहदाफ के हुसूल के लिए पाकिस्तान का नुक्ता नज़र पेश करेंगे। वज़ीर आज़म की अक़वाम मुत्तहिदा जनरल असम्बली इजलास के मौके पर मुख्तलिफ आलमी रहनुमाओं से मुलाकातें भी शेड्यूल हैं। वज़ीर आज़म की अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस से आज मुलाकात होगी, जिसमें मसला कश्मीर, फ़लस्तीन की सूरत हाल और अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के किरदार के हवाले से बात होगी। तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान और वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ के दरमियान होने वाली मुलाकात में दो तरफ़ा ताल्लुकात पर तफसीली तबादला ख्याल होगा। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की मालदीव के सदर मोहम्मद मईज़ो और कुवैत के वली अहद शेख सबा खालिद सबा से भी आज मुलाकात तय है। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ब्रुनाई दारुस्सलाम के सुल्तान की तरफ से ब्रुनाई की अक़वाम मुत्तहिदा में रुकनियत के 40 साल मुकम्मल होने पर दिए जाने वाले ज़ोहराने में शिरकत करेंगे। वज़ीर आज़म बांग्लादेश के चीफ एडवाइज़र डॉक्टर मोहम्मद यूनुस की जानिब से दिए जाने वाले इशाइये में भी शिरकत करेंगे। डॉक्टर मोहम्मद यूनुस ये ज़ोहराना बांग्लादेश की अक़वाम मुत्तहिदा की रुकनियत के 50 बरस मुकम्मल होने पर दे रहे हैं। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ 27 सितंबर को जनरल असम्बली से खिताब में इलाकाई और आलमी उमूर पर पाकिस्तान का मौक़िफ़ पेश करेंगे। दौरे अमेरिका में वज़ीर आज़म मुख्तलिफ आलमी मालियाती इदारों के सरबराहान से मुलाकातें भी करेंगे। तफसील शेयर कर रहे हैं मोहम्मद नवीद अजहर।
وزیر اعظم محمد شہباز شریف اقوام متحدہ جنرل اسمبلی اجلاس میں شرکت کے لیے نیو یارک پہنچے تو حکام نے ان کا استقبال کیا۔ وزیر اعظم آج نیو یارک میں مصروف دن گزاریں گے۔ وہ سیکرٹری جنرل اقوام متحدہ انطونیو گوتریس کی جانب سے رکن ملکوں کے سربراہان کے لیے دیے گئے استقبالیے میں شرکت کریں گے، جہاں ان کی مختلف ملکوں کے سربراہان کے ساتھ غیر رسمی ملاقات بھی ہوگی۔ وزیر دفاع خواجہ آصف، وزیر اطلاعات عطا تارڑ، وزیر وفاقی تعلیم خالد مقبول صدیقی اور معاون خصوصی طارق فاطمی وزیر اعظم کے ہمراہ ہیں۔ اقوام متحدہ جنرل اسمبلی کا اعلیٰ سطح اجلاس ملکوں کو علاقائی اور بین الاقوامی امور پر اپنا نقطہ نظر پیش کرنے کا بہترین موقع فراہم کرتا ہے۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف جنرل اسمبلی سے کلیدی خطاب میں عالمی امن و سلامتی اور خوشحالی کو فروغ دینے میں اقوام متحدہ کے کردار کی حمایت کا اعادہ کریں گے۔ وزیر اعظم پائیدار ترقی کے اہداف سے متعلق SDG موومنٹ 2024 سلامتی کونسل کی لیڈرز فار پیس کے موضوع پر اعلیٰ سطح مباحثے اور سطح سمندر میں اضافے سے پیدا ہونے والے ممکنہ خطرات پر اعلیٰ سطح اجلاس میں گفتگو کریں گے۔ محمد شہباز شریف امریکہ پاکستان بزنس کونسل اور پاکستان بینکرز کے ساتھ ملاقات میں ان کو حکومت کے کاروبار سرمایہ کاری دوست پالیسی سے آگاہ کریں گے۔ وہ مختلف عالمی رہنماؤں سے ملاقاتیں بھی کریں گے۔ وزیر اعظم کی فلسطین کے صدر محمود عباس سے خصوصی ملاقات ہوگی، جس میں فلسطین میں جاری صہیونی ظلم و جبر کو روکنے اور عالمی برادری کو اس ضمن میں اقدامات کو تیز کرنے کے لیے آمادہ کرنے کے حوالے سے مشاورت ہوگی۔ وزیر اعظم عالمی رہنماؤں کے سامنے موسمیاتی تبدیلی کے خطرے سے دوچار ممالک کے مسائل، پاکستان کی خطے میں دہشت گردی کے خاتمے کے لیے قربانیوں، عالمی معاشی نظام اور مقروض ممالک کے مسائل، کشمیر میں بھارتی غیر قانونی قبضے اور ظلم و جبر کے حوالے سے آواز اٹھائیں گے۔ وزیر اعظم برونائی دارالسلام کے سلطان کی جانب سے برونائی کی اقوام متحدہ میں رکنیت کے 40 سال مکمل ہونے پر دیے جانے والے ظہرانے اور بنگلہ دیش کے چیف ایڈوائزر ڈاکٹر محمد یونس کی جانب سے بنگلہ دیش کی اقوام متحدہ کی رکنیت کے 50 سال مکمل ہونے پر دیے جانے والے عشائیے میں بھی شرکت کریں گے۔ محمد حمید اظہر، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز۔ وزیر دفاع خواجہ محمد آصف کہتے ہیں کہ پائیدار عالمی امن و استحکام کے لیے غزہ جیسے تنازعات کا منصفانہ حل ضروری ہے۔ پائیدار ترقیاتی اہداف کے حصول کے لیے ترقی یافتہ ممالک کی جانب سے ترقی پذیر ممالک کی مدد کے لیے اعلانات کو عملی اقدامات میں بدلنے کی ضرورت ہے۔ وزیر دفاع اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی اجلاس کے موقع پر نیو یارک میں سمٹ آف دا فیوچر سے خطاب کر رہے تھے، جس کی تفصیل بتائیں گے ارسلان اسد۔ اقوام متحدہ میں شامل 100 ملکوں نے مستقبل کے حوالے سے نیو یارک میں ایک معاہدے پر دستخط کیے ہیں۔ یہ معاہدہ امن و سلامتی، پائیدار ترقی، موسمیاتی تبدیلی، ڈیجیٹل تعاون، انسانی حقوق، صنفی مساوات، نوجوانوں اور آنے والی نسلوں کے لیے مواقع پیدا کرنے جیسے موضوعات کا احاطہ کرتا ہے۔ اس اہم موقع پر اقوام متحدہ میں سمٹ آف دا فیوچر نامی اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے وزیر دفاع خواجہ محمد آصف نے کہا کہ ترقی یافتہ ملکوں کے باعث غزہ میں بڑا انسانی المیہ جنم لے چکا ہے۔ جب تک ایسے مظالم ختم نہیں کیے جاتے، دنیا میں پائیدار امن کا قیام ممکن نہیں۔ No sustainable development can take place till tragedies like Gaza are perpetuated by the developed world. The adoption of Pact of the Future is an expression of our collective determination to respond to the global challenges of security and development that threaten the present and future generations. For the over 100 developing countries, the Pact offers an opportunity to revitalize development and to reform unequal international financial economic system. وزیر دفاع خواجہ محمد آصف نے 100 ملکوں کے درمیان طے پانے والے معاہدے کا خیر مقدم کرتے ہوئے کہا کہ عالمی پائیدار ترقیاتی اہداف کے حصول کے لیے 4000 ارب ڈالرز کی ضرورت ہے۔ اس سلسلے میں 2021 میں مختص فنڈز میں بچ جانے والے 50% فنڈز کو جلد جاری کیا جائے۔ انہوں نے امیر ملکوں پر زور دیا کہ وہ عالمی ترقی کے حوالے سے اپنے وعدوں کو عملی اقدامات میں تبدیل کرتے ہوئے رواں سال ترقی پذیر ملکوں کے لیے 100 ارب ڈالرز کے فنڈز جاری کریں۔ Pakistan welcomes the outcome of Global Digital Compact. In this regard, we must bridge the North-South divide and prevent an East-West fragmentation of the digital space. We must ensure equitable data governance, and we must capture and control the power of artificial intelligence. وزیر دفاع نے مزید کہا کہ ترقیاتی اہداف کے حصول کے لیے غریب اور ترقی پذیر ملکوں کے لیے نرم شرائط پر قرضوں کے حصول کو ممکن بنایا جائے۔ ہمیں عالمی سطح پر ڈیجیٹل تفریق کو ختم کرتے ہوئے مشرق اور مغرب کے درمیان ڈیجیٹل شراکت داری کو فروغ دینا ہوگا۔ ارسلان اسد، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز۔
وزیر اطلاعات عطا اللہ تارڑ کہتے ہیں کہ مؤثر اقدامات کی بدولت عالمی سطح پر پاکستان کے تعلقات میں نمایاں بہتری آئی ہے. دوست ملکوں کے تعاون سے معیشت ٹیک آف کی پوزیشن میں ہے. اقتصادی اشاریوں میں بہتری اور عالمی اداروں کا اعتراف اہمیت کا حامل ہے. نیو یارک میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے وزیر اطلاعات نے کہا کہ مشرق وسطیٰ میں امن مسئلہ فلسطین حل کیے بغیر ممکن نہیں ہے. تفصیل بتا رہی ہیں نمرہ سہیل. وزیر اطلاعات عطا اللہ تارڑ نے ذرائع ابلاغ کے نمائندوں سے گفتگو میں کہا کہ وزیر اعظم شہباز شریف نے تمام عالمی فورمز پر نہتے فلسطینیوں اور کشمیریوں کے لیے بھرپور آواز بلند کی ہے. عالمی برادری کو نہتے فلسطینیوں کی نسل کشی روکنے کے لیے اپنا کردار ادا کرنا ہوگا. ہر انٹرنیشنل فورم پہ وزیر اعظم صاحب نے 3 باتیں کی. نمبر 1 کہ جنگی جرائم کا ارتکاب کیا جا رہا ہے فلسطین میں، غزہ میں، خان یونس میں، رفح میں. دوسرا، نہتے فلسطینیوں کی نسل کشی کی جا رہی ہے. تیسرا کہ دنیا کو اس کا نوٹس لینا چاہیے اور جو ذمہ دار ہے اسرائیل اس کو کٹہرے میں لانا چاہیے. یہ تمام باتیں وزیر اعظم کرتے رہے ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ وہاں پہ امن کا قیام ہو، جنگ بندی ہو اور اکاؤنٹیبلٹی ہو، کیونکہ فلسطین میں امن کے بغیر دنیا میں امن ممکن نہیں ہے. وزیر اطلاعات عطا تارڑ نے کہا کہ پی ٹی آئی دور میں الزام تراشی کی سیاست سے دوست ملکوں کے ساتھ تعلقات کو نقصان پہنچایا گیا. ٹھوس اقدامات سے معیشت کے ساتھ خارجہ محاذ پر اہم کامیابیاں ملی ہیں. 2018 کے بعد پاکستان کی فارن پالیسی آئسولیشن کا شکار ہوئی تھی. ہم نے ایسٹ میں بھی دوستوں کو ناراض کیا، ویسٹ میں بھی ناراض کیا. تو ایک ریوائیول ہوا ہے ہمارے فارن ریلیشنز کے اندر. دوست ممالک کے ساتھ روابط بڑے ہیں، دوست ممالک کے سائی تعاون بڑا ہے اور اس کے نتیجے میں پاکستان کی فارن پالیسی اب ایک بہت اچھے لیول کے اوپر ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی خوشخبری ہے کہ آئی ایم ایف اور ورلڈ بینک کے ساتھ جو معاملات ہیں وہ اچھے طریقے سے چل رہے ہیں. ابھی بلوم برگ نے پاکستان کی سٹاک مارکیٹ کو ایمرجنگ سٹاک مارکیٹ قرار دیا. اس کے ساتھ ساتھ انفلیشن سنگل ڈیجٹ میں آ گئی ہے 9.6% پہ. ہماری موڈیز کی ریٹنگز اپ گریڈ ہوئی ہیں، فچ کی ریٹنگز اپ گریڈ ہوئی ہیں. ایکسپورٹس 14% اوپر گئی ہیں. آئی ٹی کی ایکسپورٹس $3.1 ارب پہ پہنچ چکی ہیں. ریمیٹنسز میں اضافہ ہوا ہے. پالیسی ریٹ نیچے چلا گیا ہے. تو یہ جو اکنامک ریوائیول ہے اس میں پوری دنیا آ کے اپنا حصہ ڈال سکتی ہے. وزیر اطلاعات نے کہا کہ پاکستان نے دہشت گردی کے ہاتھوں بہت نقصان اٹھایا ہے. اس افریت کے خاتمے کے لیے کوئی کسر اٹھا نہیں رکھیں گے. ایک سوال کے جواب میں عطا اللہ تارڑ نے کہا کہ پاکستان موسمیاتی تبدیلیوں سے شدید متاثر ہونے والے ملکوں میں شامل ہے. اس مسئلے سے نمٹنے کے لیے عالمی سطح پر اجتماعی اقدامات ناگزیر ہیں. نمرہ سہیل، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، اسلام آباد. آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر نے جنوبی وزیرستان کے علاقے وانا کا دورہ کیا. ایس پی آر کے مطابق آرمی چیف کو سیکیورٹی کی تازہ ترین صورتحال، انسداد دہشت گردی کے حوالے سے جاری آپریشنز اور علاقے میں ترقیاتی اقدامات کے حوالے سے تفصیلی بریفنگ دی گئی. افسروں اور جوانوں سے گفتگو کرتے ہوئے آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر نے شدید خطرات سے نمٹنے کے لیے آپریشنل تیاریوں اور بلند حوصلے اور عزم کو سراہا. آرمی چیف نے اس عزم کا اعادہ کیا کہ پاک فوج دشمن قوتوں اور ان کے سہولتکاروں کے گھناؤنے عزائم کو ناکام بنانے کے لیے پرعزم ہے. جنرل سید عاصم منیر نے فرائض کی ادائیگی کے دوران اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کرنے والے سیکیورٹی فورسز اور قانون نافذ کرنے والے دوسرے اداروں کے اہلکاروں کو شاندار الفاظ میں خراج عقیدت پیش کیا. انہوں نے کہا کہ پاک فوج قانون نافذ کرنے والے اداروں، خاص طور پر خیبر پختونخوا پولیس کی استعداد کار میں اضافے کے لیے تکنیکی معاونت اور مدد فراہم کرتی رہے گی. آرمی چیف نے خیبر پختونخوا میں قیام امن کے حوالے سے صوبے کے عوام کے کلیدی کردار کو سراہا. انہوں نے کہا کہ جنوبی وزیرستان میں مربوط ترقیاتی منصوبے کے تحت متعدد منصوبوں کی تکمیل جاری ہے. جنرل سید عاصم منیر نے کہا کہ پاک فوج خیبر پختونخوا کے عوام کی ترقی اور خوشحالی کے لیے اپنے تمام وسائل بروئے کار لا رہی ہے. آرمی چیف نے انسداد دہشت گردی کے حوالے سے قبائلی مائدین کی حمایت کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا کہ قبائلی مائدین کی حمایت پاک فوج کے لیے تقویت کا باعث ہے. آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر نے جنوبی وزیرستان کے علاقے وانا میں یادگار شہداء پر حاضری دی اور پھول چڑھائے. جنوبی وزیرستان آمد پر کور کمانڈر پشاور نے آرمی چیف کا استقبال کیا. چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کہتے ہیں کہ بروقت انصاف کی فراہمی کے لیے آئینی عدالت کا قیام ضروری ہے. آئین پاکستان وفاق کی یکجہتی کا ضامن ہے. سندھ ہائی کورٹ بار کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ آئین سازی عدالت کے ذریعے نہیں ہو سکتی. عدالتی اصلاحات کا مقصد عوام کو جلد انصاف کی فراہمی ہے. مزید انہوں نے کیا کہا شیئر کر رہے ہیں محمد زبیر الدین. سندھ ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری نے کہا کہ آئینی عدالتیں انتہائی ضروری ہیں، جبکہ آئین میں ترمیم کرنا بھی پارلیمان کا کام ہے. تمام صوبوں کو ایک پار پہ رکھنے کے لیے ایک تو obviously آپ کا نیشنل اسمبلی ہے جہاں ڈائریکٹلی الیکٹڈ ممبرز ہیں،
और दूसरा हमने सेनेट ऑफ पाकिस्तान, एक हाउस ऑफ द फेडरेशन उनके ऊपर बिठाए हैं कि वहां तमाम सूबे के बराबर का नुमाइंदगी हो, ताकि किसी एक सूबा किसी दूसरा सूबा पे हावी ना हो सके। और अदालती निजाम में जब हम कहते हैं कि आपको वफाकी अदालत बनाना पड़ेगा, तो उस वफाकी अदालत में हर सूबा का बराबर का नुमाइंदगी होगा। उन्होंने कहा कि 1973 के आइन की वजह से अक़लियतों, मजदूरों समेत सबको आइन में हुकूक दिए गए, जबकि जमहूरियत और आइन की बालादस्ती के लिए हमने नस्लों की कुर्बानी दी है। जो भी हुकूक आज जिसके बात किया जाता है, माइनॉरिटी राइट्स, वुमेन्स राइट्स, प्रेस फ्रीडम्स, लेबर राइट्स, वो आपकी इसी आइन की वजह से आपको ये मिलता है। उन्होंने कहा कि मोहतरमा शहीद बेनजीर भुट्टो ने 73 के आइन की बहाली के लिए चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी पर भी दस्तखत किए, जबकि माजी में हमने जुडिशियल रिफॉर्म्स के लिए कोशिशें की मगर इसकी मुखालफत की गई। इससे कबल खुतबा इस्तकबालिया पेश करते हुए सिंध हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के सदर रेहान अजीज ने मुल्क में कानून की बालादस्ती के लिए तजावीज दी। तकरीब में वकला की बड़ी तादाद शरीक हुई। मोहम्मद जुबैरुद्दीन, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज, कराची। सदर आसिफ अली जरदारी से बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की चेयरपर्सन रुबीना खालिद ने ऐवान सदर इस्लामाबाद में मुलाकात की। सदर ममलिकत ने बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के दायरा कार को बढ़ाने और ज़्यादा से ज़्यादा पसमानदा तबकात को शामिल करने पर जोर दिया। उन्होंने मुस्तहिक और नादार अफराद की मदद करने पर बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की खिदमात को सराहा। चेयरपर्सन ने सदर ममलिकत को बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के हवाले से तफसीली ब्रीफिंग दी। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब कहते हैं कि इस्लाहात के एजेंडे को तरजीही बुनियादों पर मुकम्मल करेंगे। लाहौर में होने वाले सीपैक सेमिनार से वर्चुअल खिताब में वज़ीर ख़ज़ाना ने कहा कि मुश्किल फ़ैसलों से मुआशी इस्तेहकाम की बुनियाद रख दी गई है और इक़्तिसादी इशारे मुस्बत है। उन्होंने इस यकीन का इजहार किया कि IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड के कल होने वाले इजलास में पाकिस्तान के लिए $7 अरब के प्रोग्राम की मंजूरी हो जाएगी। We are very hopeful that the board will approve the 37-month, $7 billion program, under which we are very committed to do structural reforms. We need to stay with the reform agenda, whether it's on the taxation side, whether it's on the energy side, whether it's on the state-owned enterprises and the privatization side. And inshallah, we will stay the course. If you have to grow, if you have to build, you have to build from a stable base. And alhamdulillah, we have reached that level now that we can say that we have a good foundation on which we can now build from here. दूसरी जानिब मौजूदा हुकूमत की मस्बत मौशी पॉलिसीज के समरात नजर आना शुरू हो गए हैं। स्टेट बैंक की तरफ से शुरू करदा रोशन डिजिटल अकाउंट में अगस्त में रिकॉर्ड 16 करोड़ 50 लाख डॉलर्स आए। रिपोर्ट कर रहे हैं हसन नासिर सिद्दीकी। बैरूनी मुमालिक में मुकीम पाकिस्तानी वतन की मोहब्बत से सरशार होकर दूर रहकर भी मुल्क के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं, जिसकी जिंदा मिसाल स्टेट बैंक के रोशन डिजिटल अकाउंट में कसीर तादाद में सरमायाकारी है। रोशन डिजिटल अकाउंट में डॉलर, यूरो, सऊदी रियाल, UAE दिरहम और दीगर करेंसियों की आमद से अकाउंट का हजम तेजी से फैल रहा है और सिर्फ अगस्त 2024 के महीने में $165 मिलियन आए, जुलाई के महीने में $161 मिलियन और अगस्त 2023 में $130 मिलियन हैं। मुआशी माहिरीन का कहना है कि हुकूमत की पॉलिसियों पर बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानी एतमाद का इजहार कर रहे हैं, जिससे सरमायाकारी के साथ साथ तफसीलात ज़र में भी इजाफा हुआ है। इस साल उम्मीद है कि रिकॉर्डेड रेमिटेंसेस पाकिस्तान में रिसीव होंगी और इसकी बुनियादी वजह यकीनन बैरून मुल्क पाकिस्तानियों का हुकूमत पाकिस्तान और उसकी माशी पॉलिसियों पर एतमाद है, क्योंकि पाकिस्तान के मैक्रो इकनॉमिक्स इंडिकेटर्स मुस्तकिल बेहतर होते जा रहे हैं। इसमें बड़ी अच्छी ग्रोथ है, बड़ी अच्छी इम्प्रूवमेंट है। तकरीबन $8.56 बिलियन अब तक के रोशन डिजिटल अकाउंट में आ चुके हैं। यकीनन लोग अब प्रेफर कर रहे हैं कि इसके थ्रू अपना जो है इन्वेस्टमेंट करें पाकिस्तान में। रोशन डिजिटल अकाउंट में रकूम की आमद से हवाला और हुंडी के कारोबार की हौसला शिकनी हुई। डॉलर इनफ्लो में इजाफा और रुपए की कदर में इस्तेहकाम वो अवामिल हैं जिनसे मुल्क की मईशत मुस्तहकम बुनियादों पर उस्तवार हो रही है। हसन नासिर सिद्दीकी, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, कराची।
वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने सूबे भर में हाउसिंग के शोबे के हवाले से जामे पॉलिसी तलब कर ली। सूबाई काबीना के इजलास में इंडोवमेंट फंड फॉर राइटर्स वेलफेयर के लिए 50 करोड़ रुपए के इजरा की मंजूरी का फैसला किया गया। काबीना ने कच्चे के इलाके में ड्यूटी करने वाले पुलिस एहलकारों के लिए खुसूसी अलाउंस की मंजूरी भी दी। तफसील वसीम सज्जाद से। पंजाब काबीना का 16वां इजलास वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की सदारत में हुआ। इजलास में पंजाब भर में 7354 कॉलेजेस में टीचिंग इंटर्न्स की भर्ती की मंजूरी दी गई। वज़ीर आला ने पंजाब के अवाम को अपनी छत फराहम करने के लिए हाउसिंग की जामे पॉलिसी और बसारत से महरूम खसूसी अफराद के लिए माहाना पैकेज प्लान तलब कर लिया। वज़ीर आला मरियम नवाज ने पंजाब भर में वर्किंग वीमेन के हॉस्टल चार्जेस बढ़ाने से रोक दिया। काबीना के इजलास में एंडोनमेंट फंड फॉर राइटर वेलफेयर के लिए 50 करोड़ रुपए के इजरा की मंजूरी भी दी गई। काबीना के अरकान ने रहीम यार खां और कच्चा के इलाके में ड्यूटी करने वाले पुलिस एहलकारों को खराज तहसीन पेश करते हुए खसूसी अलाउंस की मंजूरी दी, जबकि हालिया सैलाब से जानी नुकसान न होने पर वजीर आबपाशी काजम पीरजादा और महकमा अनहार की कारकर्दगी को सराहा। काबीना इजलास में पंजाब में MD कैट इम्तिहानात के पुरअमन इनेकाद को भी सराहा गया। लाहौर में एक इजलास की सदारत के दौरान वज़ीर आला मरियम नवाज ने इन्फोर्समेंट रेगुलेटरी अथॉरिटी के क़याम के लिए कानूनी कार्रवाई जल्द अज जल्द मुकम्मल करने का हुक्म दिया। उन्होंने कहा कि पंजाब के अवाम को महंगाई से निजात दिलाने का अज़्म गैर मुतज़लज़ल है। मसनूई महंगाई और ज़ख़ीरा अंदोज़ी के खात्मे के लिए मजाज अथॉरिटी का क़याम नागुज़ीर है। उन्होंने कहा कि हर सेक्टर में स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स मुतारिफ करा रहे हैं। गलियों और बाजारों में तजावुज़ात की इजाज़त नहीं दी जा सकती। इस मौके पर वज़ीर आला पंजाब को ब्रीफिंग देते हुए बताया गया कि सूबाई, डिवीजनल, डिस्ट्रिक्ट और तहसील की सतह पर पंजाब इन्फोर्समेंट रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ कायम होंगी और हर जिला में डिस्ट्रिक्ट इन्फोर्समेंट रेगुलेटरी बोर्ड बनेगा। वज़ीर आला को बताया गया कि तहसील की सतह पर सब डिवीजनल इन्फोर्समेंट ऑफिसर कानून के नफाज को यकीनी बनाएगा, जबकि हियरिंग ऑफिसर तहसील की सतह पर अपील सुनकर फैसला देगा। ब्रीफिंग में बताया गया कि पंजाब इन्फोर्समेंट रेगुलेटरी अथॉरिटी महंगाई के खात्मे के लिए मौसर किरदार अदा करेगी। वसीम सज्जाद, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, लाहौर। और खुसूसी अफराद को बासलाहियत और खुद मुख्तार बनाने के लिए वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की तरफ से हिम्मत कार्ड का इजरा किया गया है। लाहौर से वर्दा सलीम की रिपोर्ट देखिए। खुसूसी अफराद मुआशरे का अहम हिस्सा हैं, जिनको कारामद शहरी बनाने के लिए वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की तरफ से हिम्मत कार्ड के इजरा उनके लिए रोशनी की उम्मीद और एक नया सहारा साबित होगा। हिम्मत कार्ड के जरिए खुसूसी अफराद अपनी बुनियादी जरूरियात को बाइज्जत तरीके से पूरा कर सकेंगे। सूबाई हुकूमत बैंक ऑफ पंजाब के इश्तराक से 65,000 स्पेशल अफराद को ATM कार्ड जारी करेगी, जिससे स्पेशल अफराद को हर 3 माह बाद 10,500 रुपए अदा किए जाएंगे। पहले मरहले में 40,000 जबकि दूसरे मरहले में 25,000 अफराद को हिम्मत कार्ड जारी होंगे। वेब पोर्टल है DPMIS, जिसपे डिसेबल्ड पर्सन्स विद डिसेबिलिटी रजिस्टर्ड हैं। उनमें से फिजिकल वेरिफिकेशन के थ्रू तकरीबन 1,03,000 लोगों को आइडेंटिफाई किया गया जो कि नॉट फिट टू वर्क हैं, और उनमें से अभी इनिशियली तकरीबन 65,000 लोगों को इस कार्ड का इजरा किया जाएगा। खुसूसी अफराद ने वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज के इस इक़दाम को खुशाइंद करार दिया और कहा कि हुकूमत पंजाब का खुसूसी अफराद के मसाइल को समझना और उन्हें हल करना काबिल तहसीन है। डिसेबल के लिए इन्होंने 10,500 रुपये रखे हैं हिम्मत कार्ड के तौर पर, एक अच्छा कदम है। मैं बड़ा ही मशकूर हूँ मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा का। मुस्तहिक खुसूसी अफराद के लिए हिम्मत कार्ड में खवातीन के लिए भी 30% कोटा मुख्तस किया गया है। खुसूसी अफराद की मावनत के लिए मखसूस हेल्पलाइन 1312 भी कायम की गई है, जो इनकी मदद और रहनुमाई के लिए हमेशा दस्तयाब रहेगी। हिम्मत कार्ड का इजरा इसी माह से होगा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की जानिब से हिम्मत कार्ड खुसूसी अफराद के लिए खुश आइंद इक़दाम है। वर्दा सलीम, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, लाहौर। पाकिस्तान और बेलारूस ने टेक्सटाइल के शोबे में ताउन बढ़ाने का फैसला किया है। इस्लामाबाद में दोनों मुल्कों के मुश्तरका वज़ारती कमीशन के इजलास में मुफाहमती याददाश्त पर दस्तखत हुए। वज़ीर तिजारत जाम कमाल खान ने कहा कि बेलारूस के साथ तिजारत, ज़राअत समेत दीगर शोबों में ताउन मजीद बढ़ाया जाएगा। बेलारूस तवानाई के शोबे की तरक्की में पाकिस्तान की मुआवनत करेगा। तफसील बता रहे हैं समीउल्लाह। पाकिस्तान और बेलारूस के दरमियान 7वें मुश्तरका वजारती कमीशन का इब्तिदाई सेशन इस्लामाबाद में हुआ। वजीर तिजारत जाम कमाल खान ने पाकिस्तानी वफ्द, जबकि बेलारूस के वजीर तवानाई अलेक्सी कुशनेरन को अपने मुल्क की नुमाइंदगी की। इजलास से खिताब करते हुए वजीर तिजारत जाम कमाल खान ने कहा कि पाकिस्तान और बेलारूस के दरमियान दो तरफा ताल्लुकात को मजीद मुस्तहकम करने में अहम पेशरफ्त हुई है। उन्होंने कहा कि दोनों ममालिक के दरमियान मुख्तलिफ शोबों में ताउन को आगे बढ़ा रहे हैं। 5 MOUs पे कंसेंसस है, जिसमें आज एक प्रोटोकॉल ऑफ टेक्सटाइल पे हमने साइन भी किया है और एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग
जो कि ट्रेड रोड मैप है 2025 से लेके 2027 का, उस पे इन प्रिंसिपल एग्रीमेंट हमारी हुई है, जिसको इंशाल्लाह बाकायदा प्राइम मिनिस्टर साहब जब विज़िट करेंगे बेलारूस का और फिर इनकी तरफ से विज़िट होगा, उसको एक फ़ाइनल शक्ल दी जाएगी। बेलारूस के वजीर तवानाई अलेक्सी कुशनेरेंको ने कहा कि बेलारूस जनूबी एशिया में पाकिस्तान के साथ अपनी तिजारती शराकतदारी को कदर की निगाह से देखता है और पाकिस्तान के साथ बाहमी फायदामंद शराकतदारी का ख्वाहां है। इस मौके पर पाकिस्तान और बेलारूस के दरमियान टेक्सटाइल के शोबे में ताउन बढ़ाने के लिए मुफाहमती यादाश्त पर दस्तखत भी किए गए। मुफाहमती यादाश्त से दोनों ममालिक के दरमियान टेक्सटाइल के शोबे में दो तरफा तिजारत को फरोग हासिल होगा। पाकिस्तान और बेलारूस के दरमियान वक्त के साथ साथ ताल्लुकात में इजाफा हो रहा है। वीज़ा पॉलिसी को मज़ीद आसान करने से तिजारती ताल्लुकात को फ़रोग हासिल होगा। समीउल्लाह, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। वफाकी वज़ीर इक़्तिसादी उमूर अहद खान चीमा ने बेलारूस के वज़ीर तवानाई एलेक्सी कोशरेंको से इस्लामाबाद में मुलाकात की। मुलाकात में दोनों मुल्कों के दरमियान इक़्तिसादी ताल्लुकात और तिजारती हिकमत अमली पर तबादला ख्याल किया गया। वफाकी वज़ीर इक़्तिसादी उमूर अहद खान चीमा ने कहा कि खुसूसी सरमायाकारी सहूलत कौंसिल के जरिए मुल्क में सरमायाकारी के लिए शफाफ निज़ाम कायम हुआ। वफाकी वज़ीर ने कहा कि रवा साल अक्टूबर में वज़ीर आज़म पाकिस्तान बेलारूस का दौरा करेंगे, जबकि नवंबर में सदर ममलिकत शंघाई ताउन तंजीम के इजलास में शिरकत के लिए बेलारूस जाएंगे। वफाकी वज़ीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल ने कहा है कि पाकिस्तान काज़ाकिस्तान के साथ इलाकाई तिजारत, सरमायाकारी और ट्रांजिट ट्रेड समेत दीगर शोबों में दो तरफा ताल्लुकात को मज़ीद मुस्तहकम करने का ख्वाहां है। इस्लामाबाद में काज़ाकिस्तान के साथ इलाकाई ताउन के फ़रोग़ के हवाले से कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए एहसन इकबाल ने कहा कि बदकिस्मती से मौजूदा दो तरफा तिजारत दोनों मुल्कों के दरमियान वसी तिजारती इम्कानात के मुताबिक नहीं। उन्होंने कहा कि हमारी हुकूमत की मस्बत पॉलिसीज़ की बदौलत मुल्क की तरक्की का सफ़र दोबारा शुरू हो चुका है। So it is about time that now again Pakistan is going through a turnaround after paying political price for bringing Pakistan back from the brink of default. Indicators are getting better. Inflation has come down from 38-40% to 9.5%. The policy rate has come down by more than 3%, 4%. Karachi Stock Exchange mood only indicates that the investor community is expressing their confidence in the direction that the country has taken. नाज़रीन, रेकोडिक मंसूबा चागी जिला बलूचिस्तान में एक अहम तरक्याती मंसूबा है, जहां दुनिया के सबसे बड़े तांबे और सोने के ज़खायर मौजूद हैं। इस मंसूबे से बलूचिस्तान के लोगों की समाजी और इक़्तिसादी जिंदगी में तब्दीली और मुल्क की मईशत में बेहतरी आएगी। रेकोडिक मंसूबे में निस्फ सदी से ज्यादा अरसे तक सालाना 2 लाख टन तांबा और 2.5 लाख औंस सोना पैदा करने की सलाहियत मौजूद है। हाल ही में सऊदी अरब ने भी इस पर 15% सरमायाकारी की पेशकश की है। रेकोडिक पाकिस्तान की मईशत में 2028 से अहम किरदार अदा करने के लिए तैयार होगा। ये मनसूबा तकमील पर 8000 अफराद को रोजगार मुहैया करेगा, जबकि पैदावार के मरहले में के आगाज में 4000 तवील मुद्दती मुलाजमतों के मौके पैदा करेगा। तांबे के वसाइल को तरक्की देकर पाकिस्तान फॉसिल फ्यूल पर अपना इन्हिसार कम करेगा, जिससे मईशत को फायदा पहुंचेगा। इस मनसूबे से बलूचिस्तान के लोगों की समाजी और इक़्तिसादी जिंदगी में तब्दीली आएगी। खुसूसी सरमायाकारी सहूलत कौंसिल की जानिब से पेट्रोलियम डिवीजन को जामशोरो ज्वाइंट वेंचर लिमिटेड के साथ मुआहदे के तहत पेट्रोलियम गैस प्लांट पर दोबारा काम शुरू करने के लिए इक़दाम करने की हिदायत की गई है। जामशोरो ज्वाइंट वेंचर लिमिटेड एक मुआहदे के तहत 2005 से सुई सदरन गैस कंपनी लिमिटेड की ट्रांसमिशन पाइपलाइन से माया पेट्रोलियम गैस और कुदरती गैस की तरसील की मिजाज थी। दोनों कंपनीज के माबैन प्रोसेसिंग चार्जेस की वसूली पर इख्तलाफात के बायस ये मुआहदा 2018 में मुअत्तल हो गया था। SIFC की मुआविनत से दोनों कंपनियां मुनसिफाना रेवेन्यू शेयरिंग फार्मूले पर मुत्तफिक हो गई हैं। सुई सदरन माजी में ऑपरेशनल मॉडल्स के तहत जामशोरो ज्वाइंट वेंचर के साथ मुआहदों के बायस $110 मिलियन से ज्यादा मुनाफा हासिल कर चुकी है। नाज़रीन, सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब में इलेक्शन ट्रिब्यूनल से मुताल्लिक केस का फैसला महफूज कर लिया है। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की सरबराही में 5 रुकनी बेंच ने समाअत मुकम्मल करने के बाद ये फैसला महफूज किया। दौरान समाअत चीफ जस्टिस ने कहा कि मुल्क को इस्तेहकाम की जरूरत है। हमें सीखना है कि इदारों को काम करने देना चाहिए। तनाज़ात होते हैं, लेकिन ये नहीं कि इदारों पर चढ़ाई कर दी जाए। इलेक्शन कमीशन के वकील ने दलाइल देते हुए मौक़िफ़ इख्तियार किया कि मसला हल हो चुका है। 8 में से 4 इलेक्शन ट्रिब्यूनल फाल हैं। 4 ट्रिब्यूनल इलेक्शन कमीशन नोटिफाई करेगा।
पिशावर में कम उम्र बच्चे गायब होने का इंकिशाफ हुआ है, जिस पर मुस्लिम लीग नून की एमपीए सोबिया शाहिद ने खैबर पख्तूनख्वा असेंबली में तवज्जो दिलाओ नोटिस जमा करा दिया। तवज्जो दिलाओ नोटिस के मुताबिक सूबाई दारुल-हुकूमत में बच्चों के गायब होने के वाकयात में इजाफा हुआ है। बच्चों के गायब होने के वाकयात से अवाम में बेचैनी फैल गई है। गायब बच्चों के पीछे भयानक किस्म के खदशात का इजहार किया जा रहा है। तवज्जो दिलाओ नोटिस में स्पीकर से मुतालबा किया गया है कि संगीन मामले की नज़ाकत को देखते हुए इस पर ऐवान में बात करने की इजाज़त दी जाए। अवामी नेशनल पार्टी के सदर सेनेटर एमल वली खान ने कराची में मीडिया से गुफ्तगू की, जिसमें उनका कहना था कि कलअदम टीटीपी और पीटीआई एक सिक्के के दो रुख हैं। उन्होंने कहा कि खैबर पख्तूनख्वा में अमन व अमान की मखदूश सूरत हाल है। पीटीआई एक हकीकी सियासी जमात नहीं, फौरन फंडेड सियासी फितना है। उन्होंने कहा कि पीटीआई दौर में दहशतगर्दी परवान चढ़ी, जिसका खुमियाजा कौम भुगत रही है। वतन के लिए जान का नजराना पेश करने वाले शोहदा को पूरी कौम खिराजे अकीदत पेश करती है। हवालदार अकील अहमद शहीद ने 21 जून 2024 को जिला करम के इलाके में दहशतगर्दों के खिलाफ लड़ते हुए दिफाए वतन में जामे शहादत नोश किया। मेरा बेटा हवालदार अकील अहमद शहीद बहुत बहादुर था। उस आर्मी में जाने का बहुत शौक था, उसने शहीद होने का भी बहुत शौक था। उसकी अल्लाह ने ख्वाहिश पूरी कर दी, अल्लाह उसने जन्नत में अल्लाह मुकाम दे। मेरे 3 बेटे और हैं, उन लोग को जरूरत पड़ेगी तो मैं उन्हें भी कुर्बान कर दूंगी। शहीद हवलदार अकील अहमद की बीवी हूँ, बहुत याद आते हैं हमें। बच्चों को भी उनकी बहुत कमी महसूस होती है। एक बेटा है, एक बेटी है मेरी, बहुत प्यार करते थे उनसे, ये भी बहुत याद करते हैं उनको। चाहती हूँ उनकी अच्छी तरबियत करूँ। मुझे फख्र है मेरे भाई को शहादत नसीब हुई। वो अक्सर मुझे बचपन में कहा करता था मैं पाक आर्मी में जाके मुल्क का नाम रोशन करूँगा, अपने इलाके का, अपने ख़ानदान का नाम रोशन करूँगा। फौज की गाड़ी को देखकर उसको सलूट करता था और उसे बहुत शौक़ था फौज में जाने का। आज अल्लाह ताला ने उसका शौक़ पूरा किया, उसको शहादत नसीब करना। मुझे फख्र है कि मैं एक शहीद की बहन हूँ। बहुत प्यार करते थे, हम सबके बड़े भाई थे और हमारे बाप की जगह थे। वो हमारी सारी ख्वाहिशात पूरी करते थे। पहले हम अपने वालिद साहब के नाम से जाने जाते थे, लेकिन जब से मेरे भाई शहीद हुए हैं हम अपने भाई की शहादत से जाने जाते हैं। अभी बड़ा हो गया फौजी बनूंगा, अपने बाबा के चले पादर बनूंगा। मैं अपने बाबा से बहुत प्यार करता हूँ, उनकी बहुत याद आता है। मेरे बाबा की बाल काना भी लेके जाते थे। पाकिस्तान जिंदाबाद। कतर नेवी के बहरी जहाज अलखोर की कराची आमद पर पुरतपाक इस्तकबाल किया गया। ISPR के मुताबिक कतर के बहरी जहाज की 36 साल बाद पाकिस्तान आमद एक तारीखी संग मील है। कराची में पाक कतर बहरी जहाज़ों के माबैन मश्क असद अल बहर का इनेकाद किया गया। कतरी बहरिया के कमांडिंग ऑफिसर ने बानी पाकिस्तान कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह के मज़ार पर हाज़िरी दी और बाबा कौम को खिराज अकीदत पेश किया। कतरी बहरिया के कमांडिंग ऑफिसर ने कमांडर पाकिस्तान फ्लीट वाइस एडमिरल फैसल अब्बासी से भी मुलाकात की। मुलाकात के दौरान बाहमी दिलचस्पी के पेशा वराना उमूर पर ताउन और तबादला ख्याल किया गया। श्रीलंका के सदर अनुरा कुमारा ने डॉक्टर हेरिनी अमरसूरिया को श्रीलंका की नई वज़ीर-ए-आज़म मुकर्रर किया है। वो मुल्क की वज़ीर-ए-आज़म बनने वाली तीसरी खातून हैं। वो यूनिवर्सिटी की साबिक लेक्चरर थी, जिसके बाद वो रुकने असेंबली मुंतखब हुई। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने डॉक्टर हेरिनी अमरसूरिया को श्रीलंका की नई वज़ीर-ए-आज़म का ओहदा संभालने पर मुबारकबाद दी है। वज़ीर-ए-आज़म ने डॉक्टर हेरिनी के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार करते हुए कहा कि आपके दौरे हुकूमत में पाकिस्तान और श्रीलंका के दरमियान कसीरुजहती ताउन में मज़ीद इजाफा होगा। कुछ बात करते हैं लेबनान की सूरत हाल की, जहां पर मुख्तलिफ इलाकों में गुज़श्ता रोज़ से जारी इसराइली बमबारी में 558 अफराद जाँ बहक जबकि 1800 से ज़ायद जख्मी हो चुके हैं। जाँ बहक होने वालों में 50 बच्चे और 90 ख़वातीन भी शामिल हैं। हज़ारों ख़ानदान जनूबी लबनान से नकल मकानी कर रहे हैं और दारुल हुकूमत बैरूत जाने वाली सड़क पर शदीद रश है। इसराइल और लबनानी मज़ाहमतकारों के एक दूसरे पर हमले आज दूसरे रोज़ भी जारी रहे और सरहद के दोनों जानिब स्कूल्स बंद कर दिए गए। पाकिस्तान ने लबनान पर इसराइल की जारियत की मजम्मत की है। तर्जुमान दफ्तर खारजा मुमताज़ ज़हरा बलोच ने अपने बयान में कहा कि पाकिस्तान लबनान के खिलाफ इसराइल की ताज़ा तरीन फौजी जारियत की शदीद मजम्मत करता है, जिसमें सैकड़ों शहरी जाँ बहक हुए हैं। तर्जुमान ने कहा कि इसराइली जारियत अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर और बैन अल-अक़वामी क़वानीन की संगीन खिलाफ वर्जी है। तर्जुमान ने कहा कि पाकिस्तान लबनान की खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत के लिए उसकी हिमायत का अदा करता है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान लबनान के अवाम के साथ इजहार यकजहती और उनकी अमन सलामती के साथ रहने के हक के साथ खड़ा है। तर्जुमान ने कहा कि हम आलमी बिरादरी से मुतालबा करते हैं कि वो इसराइल के खित्ते में खतरनाक मुहिम जुई, जाहरियत और नस्ल कुशी की कार्रवाइयों का मुहासबा करने के लिए फौरी इक़दामात करे।
بھارتی حکومت نے غیر ملکی سفارتکاروں کے لیے طے شدہ منظم دورے پر سے قبل ہی سری نگر میں پابندیاں مزید سخت کر دی ہیں۔ کشمیر میڈیا سروس کے مطابق نام نہاد اسمبلی انتخابات کے دوسرے مرحلے کے دوران گاڑیوں اور مسافروں کی سخت تلاشی، ڈرونز کے ذریعے نگرانی اور بڑی تعداد میں فوج اور پیراملٹری فورسز کی تعیناتی سمیت سخت پابندیوں سے شہری حقوق اور آزادیاں سلب کی گئی ہیں۔ ان اقدامات سے مقبوضہ علاقے میں خوف و دہشت کا ماحول پیدا ہو گیا ہے۔ سری نگر میں چسپاں کیے گئے پوسٹرز میں غیر ملکی سفارتکاروں کے دورے کی مذمت کی گئی ہے۔ پوسٹرز میں کہا گیا ہے کہ مودی حکومت ایک منظم منصوبے کے ذریعے دنیا کو گمراہ کر رہی ہے۔ سینئر حریت رہنما میروائز عمر فاروق نے سری نگر میں ایک میڈیا انٹرویو میں تنازع کشمیر کے حل کے لیے بامعنی مذاکرات کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ حریت رہنماؤں اور کارکنوں پر سخت پابندیوں کے باوجود کشمیریوں کے جذبہ حریت میں کوئی کمی نہیں آئی۔ انہوں نے پریس، آزادی اظہار رائے اور لوگوں کے اجتماع پر پابندیوں کا حوالہ دیتے ہوئے مقبوضہ علاقے میں صورتحال بہتر ہونے کی مودی حکومت کے دعووں کو مسترد کر دیا۔ بی جے پی حکومت نے مقبوضہ جموں و کشمیر میں 21 سرکاری ملازمین کو معطل جبکہ 5 عارضی ملازمین کو من گھڑت الزامات پر برطرف کر دیا ہے۔ یہ اقدام کشمیری ملازمین کو جھوٹے الزامات پر برطرف، معطل اور ہراساں کرنے کے قابض حکومت کی پالیسیوں کا حصہ ہے۔ ضلع کشتواڑ میں 32 سالہ کشمیری نوجوان بلال احمد بھارتی پولیس کی حراست میں انتقال کر گئے۔ بھارت کے بدنام زمانہ تحقیقاتی ادارے NIA نے بلال پر 2020 میں پیراملٹری فورسز کے قافلے پر خودکش حملے میں ملوث ہونے کا الزام لگایا تھا۔ دوسری جانب کشمیری رہنما الطاف حسین وانی نے غیر ملکی سفارتکاروں کے نام ایک مراسلے میں سفارتکاروں پر زور دیا ہے کہ وہ مقبوضہ علاقے میں اقوام متحدہ کے فیکٹ فائنڈنگ مشن اور انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کے بین الاقوامی تحقیقات کی حمایت کریں اور نظر بند سیاسی رہنما اور کارکنوں کی رہائی کو یقینی بنائیں۔ مودی کے بھارت میں مسلمانوں کے خلاف تعصب کھل کر سامنے آنے لگا۔ حال ہی میں کرناٹک ہائی کورٹ کے جسٹس وی سریسانن نے بنگلور کے ایک مسلم اکثریتی علاقے کو منی پاکستان قرار دیا۔ ان کا کہنا تھا کہ میسور روڈ فلائی اوور مارکیٹ سے گورپالیا تک کا علاقہ پاکستان ہے، یہ بھارت میں نہیں۔ نیشنل فیملی ہیلتھ سروے کے مطابق بھارت میں مسلمانوں کی حالت اوسط درجے کی بھارت سے بہت کم ہے۔ مسلمانوں کی اوسط تعلیم دوسری کمیونٹیز کی نسبت کم ہے۔ مسلمان بچوں کی شیرخوارگی میں شرح موت کا تناسب ہندو اکثریتی علاقوں کی اوسط سے تقریباً 5% زیادہ ہے، جبکہ 5 سال سے کم عمر بچوں میں غذائی کمی کی شرح میں مسلمانوں میں زیادہ ہے۔